Bağlı Haji Sir, ini marshal future ko. Ini ngajar marshal yulpa gunjul samai soba. Ini tapana tuji cheji. Ini jembat. Tu nengembo yang nija department ini department sama tengah dah lena sanksi department. Samai department samai ini head future lah. Nija sama tengah ngajar marshal yulpa gunjul. Gasu jinji jule. Ini sama-sama lah tene ngaja marshal wilpe chok na tene MP sahab tene ngaji memorandum jo wilpe chok na jo tene memorandum dina ta ngaji yule tene ngaja yul bina tene ngaji samso rjat jo de tene te samso rjat po tene ngaji tene ngaja chalak jo chas le tene Stan chokse yang tene zambu tizu mecha sikya tene ngaji sang dere na ngaja doza ki ngaja kharcha charukle tepia ngaji to ngaji jiwa kule tele sikle tene yuli chokda yang ispao tene ngata street lady ngata azuk shodle tene te demand dikle street lady po tene ngata daksa nila buk na tene pani chupa road ka ngata street lady tamsazle tene I kanai hospital na tene mane chomo chupa street le tamsale testing na tene ngata I hospital na yagla ho chupa tene street le tamsasi te demand ho ngata demand sim jure sport la ya chige yon tam tene ka diri nije te ija jao sa te bol na diktan pele tene to menba ne samay yang MP sa ngaji yu juan le Kalau tutor na tizuk mangbek tengaji intikal na tizuk mana macha azu tu gaya. Daksa ngaji tahsildar ka zana to DC na mana daksa azu ko te sakya di intikal choche se azu ko men mo tu gaya. To mas kala chichi yang to tu gaya. Notor intikal mecha chas ko gaya. Ma izuwe tani yulukane karunirang sketche bo ma gala na samarak chia zena ngata 미군이 기득 가족이요 가족시 낙버도 때문에 얘랑 받아 차노 저랑 녀보니 뭔가다 디파트먼트 상마 받아 차노 얘랑 기적보 니처럼 마 이수마 다시들이 준 근데 때왕 내때 준 고마랑 되는 거다 каргилне 되는 MP 하다 이거 톱때 고마랑 깔려면 수상 다서 봐 MP 나이처럼 아래 고마랑 때는 나이 상관은 마 맞아 다 돌아가네 얘랑 기적보 Tene te bojun kale na ta ngaji maso kumbi chone te bojua pula chita ngata MP saba logic ka karo ngata fani no hala te som pasa tene maso kumbi chone ngaji chen ling pia ngata izu are chama mongko tu te bo chen ling pia tene lak nisu sanga jinga te demand yo te bokale ngaja sachi za te jua pulinya chik nisbabu nga ta gobasa ko to itu yo mazat tenangata ini future government school ni tu ata yabuwa te lam rokma khasana oshi te bo PMG wise na chuchuk te de nyo yopole nira changa ina PMG wise po te bo ngaji mixa langi ga yopole ya ata ma khatan ni tena te bo gala changa ja ji chana PMG wise ili to ya land compensation to 56 lakh yi ko kal to ACR ते गाने पेपर वर्क सभी एरर होते जस्ते थे तो डिस्बर्स मत करे हम लोग का टीवी कंपनी शुरू समाटिक तो थरे लूज पकाले पे इस को छाड़ देंगे संग मत लेना काले यार टेक्नोलॉजी के दियाले काओ सीजीपी रिजन ते ग्राउंड को टेंपरेचर को टंगो चचे जस्ते सीमेंटेड ग्राउंड तो दियाले काओ राजस्थान में ता क्यों होते ते वो टंगो ना तंग में बस नेक्स्ट कमिंग सीजन स्टार्टिंग ना तंग 1500 meters is manala meter बाकी कंप्लीट हो गया दूसरे पकाले पे इस विलास को हम थरे लाया ले पीएमजी स्काल बोले फंड सार मोदु पकाले जी
और कमिंग नेक्स्ट सीजन में स्टार्टिंग ना नेक्स्ट सीजन में दिया सकता है इन वर्किंग सीजन में ना सेकेंड अवार्ड में पूरा उन्ना थ्री लातुरा में जगह चिक कंपटीशन डेट तो था इसी Iwa tabtok po johan mirgyale. Kaka sikpa tang bosyon tega sikpa sala mirgyale. Kaka yura tong bosyon tega yura sala mirgyale. Chang objection met numu chuja. Tagnani kilometer chik zato chang objection met le ta ko mane mata dugle. Mane mata chang objection met. Khola dhuma bo chat chuk sokle. Ngala tingone skang bo mata yale. Tipia gachte borte no sable ya. 이거는 야래 감이와 시장당 곳에 팀이 따면 직접 아이 시කු치 잡으려고 काफी लाइटें दिन को जब नहीं आता है डे टाइम पे क्या होता है उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है नहीं तो नहीं है हमारे जो स्किल्स है ना उसमें स्टील लाइन में काम चल रहा है तो बीच में शटडाउन लेना पड़ता है ये काम करने के लिए तो ये कुछ हफ्ते के अंदर ये सब खत्म हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं ठीक है आगे नहीं होता है ठीक है नहीं तो क्या होता है जब रात को लाइट आ रहा है रात को तो मतलब वो जो का वो बेनिफिट नहीं आ पाएगा तो आएगा ना लाइट है ना फर्स्ट क्लास अभी तो है अब रात को तो लाइट आएगा उसका फायदा नहीं ना तो रोड को पैनल इसका जो है ना ये दिन में आ जाएगा लाइट काम चल रहा है इसलिए नहीं आ रहा मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ऐसा होता है लाइट नहीं आ रहा रूफटॉप जब हमारे गाँव में रूफटॉप जब सही तरीके से चलेगा ना इसका बेनिफिट बहुत है बिल्कुल बिल्कुल ये तो आपको दिन चलाएगा Nurulan jikternya hotel kale, jadi ini namanya first वो मुझे ये stock road kale, sekolah studio से दिया ini kale. Jono stock toko kita ना cucot kuzine tangkan jika jas latin zakwa, mau kasut kale. Lojung cuyo tu aja cucot bang kasut, stopang kasut kale ya. Kau macam mula ini jamnya tinggal tanang aja cucot pintin acang pun alipsi masal tu, tu aja duk matu. Mereka ani panjang lah. Ini lagi ini jual ngajar toko nangi sekolah road rumah zero. करना है वो करते भी आ रहे हैं इंशाल्लाह चाहे एपेक्स में कीड़े और इनकी आवामी सपोर्ट ना इनकी बेबदौलत इंशाल्लाह मतलब कोशिश इनकी लद्दाख को आगे जो है हम एक खूबसूरत लद्दाख की ओर हम ले जाए जहाँ जिस लद्दाख में हम सब मजहब के लोग सब इलाके के लोग मिलजुल के भाईचारगी के साथ हाई स्कूल रोड पुला कलवा टिका चिक వచ్చి दो प्लस ते कने रोड को छुना हॉल कनेक्ट हो जाए ते करते ने संपे काम करছে जो आए थे ये कंस्ट्रक्शन है तुका विचार नहीं आता डिपार्टमेंट का विचार नहीं तो लगा जे दोबारा रिक्वेस्ट नहीं है कि ना होते रोड को हाई स्कूल रोड पुला तब ते हो छुपा चिपेजान लिंक रोड न पाले तो कनेक्टिविटी छा होছে तो हाउस को लगा संपे कोशिश है गाँव के हो सकता कनेक्शन हो सर्कुलर रोड गाँव कनेक्शन। तो सर जिस तरह से आज आपने
अपने 2 दिन दौरा का जो पहला दिन जो है वो माठो और स्टोक में आपने किया था सर टूर। इस टूर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि लोगों का क्या खदशात रहा है, कितने क्या परेशानियां हैं, उनको हल करने के लिए आपने सारे डिपार्टमेंट के साथ आप टूर पे गए थे, तो इस टूर के बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पिछले 1-1.5 साल में जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हूँ, मेरा कोशिश यही है कि लद्दाख के हर गांव में, हर इलाके में पहुंचने का मैं कोशिश कर रहा हूं। ख़ासकर रिमोट एरियाज़ अभी रिसेंटली मैं करगिल के बहुत सारे इलाके में गया हूं, जहां बहुत कई गांव, 1-2 गांव तो ऐसे हैं जहां अभी रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो मकसद यही है कि हर जगह पहुंच के हमारे लोगों की जो इश्यूज़ है, जो परेशानियां हैं, जो उनके मुतालिबात है, उनको समझूं, उनको देखूं, जानूं, उनकी ज़बानी मैंने सुनूं, और उसके बाद जो है आने वाली जो मेरा टेन्योर है उसमें जो कोशिश यही है कि प्रायोरिटी वाइज स्टेप बाय स्टेप उनकी जो परेशानियां हैं, उनको जो इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करें। आज लेके 2 गाँव का आज मेरा दौरा था। चूँकि करगिल का तकरीबन मैंने ख़त्म किया है, लेके अभी कुछ इलाके अभी बचे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी टाइम मिले उस वक़्त में उन गाँव तक जाऊँ। आज पूरे डिपार्टमेंट के हेड्स को लेके मैं इन गाँव में गए हैं। मकसद यही था कि जो ऑन स्पॉट जो उनके जो छोटे मोटे इश्यूज़ जो होते हैं, उनको जो डिपार्टमेंट अपने लेवल पे कर सकता है, उसको वहीं पे उनका जो इश्यूज़ है उसको पूरा किया जाए। उसके अलावा जो बड़े इश्यूज़ हैं उसको यूटी लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह करने की हो, तो उसको टूर के बाद इंशाल्लाह इस सारे इश्यूज़ को देख के हम प्रायोरिटी वाइज इस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो सर, जिस तरह से एपेक्स और केडीए की तरफ से जो एक एमएचए के द्वारा जो एमएचए को जो एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया हुआ है 29 पेजेस का, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जैसे हम सबको मालूम है कि पिछले कई सालों से हमारे यहाँ केडीए और एपेक्स के बैनर तले एहतजाज भी हुई। एमएचए के साथ हमारे वक्तन फ़वक्तन बातचीत का सिलसिला भी चला, लेकिन बीच में कुछ काफ़ी गैप होने की वजह से अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हमारे लेह में हमारे गुज़री, जिसमें हमारे नौजवानों की जानें चली गई। उसके बाद एमएचए ने फिर बातचीत का सिलसिला फिर शुरू किया और एक बार मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो मुझे महसूस हुआ, अभी जो महसूस हुआ कि एमएचए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब ये माना है कि लद्दाख का ये जो इश्यूज़ है इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो मुझे लगा कि अब पहली बार हमारे जो मेन मुद्दे हैं, हमारे स्टेटहुड है, हमारे 6 शेड्यूल है, उन पे खुल के वहाँ पे डिस्कशन हुई, डिलिब्रेट हुई, और उसी मीटिंग में फिर ये डिसाइड हुआ हमारे ओर से, ये हमने कहा कि हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने के बजाय हम अपना एक ड्राफ्ट बना के, एक ड्राफ्ट के तौर पे जो हमारे जो मुतालिबात है वो आपके सामने रखेंगे। तो उसी का कड़ी था कि केडीए और एपेक्स ने अपनी जगह पर दोनों ने अपना ड्राफ्ट जो बना के तैयार करके लास्ट टाइम जब हम लेह में हमारे सब कमेटी का मीटिंग हुआ था, उसमें उन दोनों ड्राफ्ट पे हमें डिस्कस हुआ। और चूँकि मसले एक है, इशू एक है, और दोनों केडीए और एपेक्स दोनों जो है मुस्तकबिल, हमारे लद्दाख के मुस्तकबिल को लेके दोनों एक ही पेज पे है, तो ऑलमोस्ट दोनों का ड्राफ्ट जो है वो बिल्कुल सेम लगा मुझे। कोई उसमें थोड़ा एक तफसील में, एक थोड़ा उसमें है, बाकी एक्ट जो ये ड्राफ्ट जो है दोनों का तकरीबन सेम था। तो हमने फिर डिसाइड किया हम इस दोनों ड्राफ्ट को कंपाइल करके एक ही ड्राफ्ट की सूरत में हम इनको एमएचए को हम सबमिट करेंगे। तो उसके बाद अब सबको पता है, जो पब्लिक भी हुआ है अभी ड्राफ्ट जो है, ये दोनों केडीए और एपेक्स का दोनों का निचोड़ ड्राफ्ट वही है जो आज पब्लिक हुआ है और एमएचए को सबमिट भी हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि एमएचए भी 5 दिन हफ्ता तो उनको भी टाइम
लगना है, उस ड्राफ्ट को स्टडी करना है, फिर उसके बाद वो लोग खुद भी तैयार होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो सब कमेटी के दोबारा मीटिंग बुला के इसको फिर से डिस्कस करके हाई पावर कमेटी में इसको भेजेंगे, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा, जो भी वहाँ पे मज़ीद जो भी मशवरे होंगे, डिस्कशन होंगे, वो हाई पावर कमेटी में होगा, जो कि एक ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब के चेयरमैनशिप में होता है। तो असली डिसीजन वगैरह वो सब ये हाई पावर कमेटी में होगा। तो इंशाल्लाह मुझे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब कमेटी के मीटिंग होंगे और सीरियसली जो जिस तरीके से हमारा पहला मीटिंग हुआ उसी तरीके से लद्दाख के जो मेन इश्यूज़ पे डिस्कस करके इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सर, तो जिस तरह 24 तारीख को जो यहाँ पे वाक़या हुआ उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो यूथ जो है अभी जेल में है सर, तो उनको छोड़ने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, केडी और एपेक्स ने जो सब कमेटी का हमारे मीटिंग हुआ है उसमें भी बहुत ही ज़ोर शोर से हमने उस इश्यूज़ को वहाँ पे डिस्कस करके ये जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें भी और हमारे केडी और एपेक्स की तरफ से एमएचए को भी, और दूसरा उसी वक्त हम लोग डीजीपी साहब से भी हमने मुलाकात की है, एलजी साहब के सामने भी हमने रखे हैं कि जो भी एक तो जो भी पकड़ दकड़ हुआ है, जिनको पकड़ा है और बेल भी हुआ है या जिनको अभी पकड़ रहे हैं उनके हमें, क्योंकि हम जेल भी गए थे लोगों से मिलने के लिए, उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी लोग आए हैं कि लोगों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम डीजीपी से भी मिले और आने वाले दिनों में मीटिंग भी होंगे और एमएचए या कोशिश हम कर रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे, पार्लियामेंट में भी अगर टाइम मिला तो इन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे जो पकड़े गए हैं उनको वन टाइम जो है जो आज तक बाकी जगहों में कश्मीर में उस तरह के हालात में भी बाकी इस देश के ऐसे जगहों में इससे भी ज़्यादा जो लोग जो जिस तरह फंसे हैं एक हीलिंग टच दे के जो है एक वन टाइम उनको ये देता है। तो हम भी डिमांड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर वगैरह डाला है उनको वन टाइम जो है उनको ख़त्म किया जाए। सर, सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहेंगे? वो अभी भी जेल में? बिल्कुल, सोनम वांगचुक के बारे में भी आप सबको पता है कि जब से सोनम वांगचुक जी को एनएसए लगा के जेल में डाला है तब से खुसूसन दिल्ली में जब हम लोग थे, केडीए की लीडरशिप या एपेक्स के लोग हैं, हम सब उनके लिए एमएचए से हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम यही कह रहे हैं कि भाई जो एनएसए जो इनके ऊपर लगाया गया है वो ठीक नहीं लगाया और इल्लीगल लगाया है। ऐसा कोई उन्होंने कोई देश के ख़िलाफ़ या एंटी कुछ ये किया नहीं है। तो उनसे ये जो एनएसए है जो इसको वापस लेना चाहिए और उसके बारे में इंशाल्लाह सोनम वांगचुक के बारे के साथ जो है बाकी जितने भी पकड़े गए हैं उन सब के लिए इंशाल्लाह हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सर, जिस तरह से हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ भी है सर, और फंड्स की भी बहुत कमी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो यहाँ अभी बन रहे, चल रहे या बन चुका है सर, जिसमें 4 करोड़ या 5 करोड़ से ज़ायद प्रोजेक्ट है, लेकिन पैसा उसमें अभी तक नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स का भी बड़ा एक खदशात रहा है सर। तो बोलता है कि ऊपर से क्वालिटी वाला काम भी चाहिए लेकिन पैसे भी उतना नहीं दे रहा है, तो बहुत अच्छा है। क्या कुछ देखिए, हम सबको मालूम है कि इस साल के जो बजट में लद्दाख के जो बजट में है उसमें कटौती किया गया था, इवन आपके कैपेक्स बजट से भी काटा गया था। लेकिन उसके बाद हर प्लेटफॉर्म पे हमारे हर लीडरशिप ने इस इश्यूज़ को टेकअप किया, फाइनेंस से भी, होम मिनिस्ट्री से भी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमें ये एश्योर किया गया था, वादा किया गया था। जबकि करगिल में तो आपको पता है इस साल जो कौंसिल मीटिंग था, जनरल कौंसिल मीटिंग प्लान का, तो वहाँ पे हमारे काउंसलर, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, उन्होंने ये कहा गया था कि जब तक हमारा फंड्स जो है इसको पूरी तरह वापस नहीं किया जाए तो हम इस मीटिंग को हम नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी साहब करगिल में आके हमें ये एश्योरेंस दिया था कि हमारे एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो बजट जो है वो उसको फिर से पूरा किया जाएगा। और आज की डेट में अगर एक्सपेंडिचर को देखें
तो जो जितना उन्होंने कहा गया था 75%, तो उससे भी ऊपर जो है हमारा एक्सपेंडिचर गया है। तो एक तो मुझे ये उम्मीद है कि जो अभी जो आने वाले दिनों में वो जो कटौती था उसको फिर से रिवाइव करके, ख़ासकर जो लाइबिलिटीज़ जो हमारे ऊपर क्रिएट हुए हैं, अगर ये बजट फिर से पूरा ना किया जाए और लाइबिलिटीज़ अगर इस तरह रहे तो आने वाले बजट कभी वो ख़राब हो जाएगा। इतने लाइबिलिटीज़ जो है हमारे ऊपर बर्डन जो है वो हमारे ऊपर आए हुए हैं। और दूसरा, अभी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री से मैं मिल के ये सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम कैपेक्स बजट के जो कटौती किया है उसको फिर से पूरा करें। सर, 24 तारीख को जो 4 बच्चे जो शहीद हुए उनके लिए क्या कहेंगे कि कंपनसेशन की? बिल्कुल, कंपनसेशन के लिए हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एमएचए के जो सब कमेटी मीटिंग में अभी आने वाले दिनों में जो भी मीटिंग हो, हमने बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से इस चीज़ को उठाया है कि मेरा तो कोशिश यही है और हर किसी को मैंने यही कहा गया है कि जो 4 लोग जो उस जो इंसिडेंट में उनके जान चले गए हैं और बहुत ही गरीब घराने के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। हमारा डिमांड यही है कि उनको उनकी फैमिली के ख्वाहिशात के मुताबिक, उनकी चाहत के मुताबिक उनको कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि 1-2 फैमिलीज जो है वो चाहते हैं कि उनके घर में कम से कम एक नफ़र को रोज़गार मिले, नौकरी मिले। अच्छा, दूसरे जो 2 लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि कुछ उनको उन जो मारे गए हैं उनके नाम पे कुछ प्लाट वगैरह दे। तो हमने यही डिमांड किया है कि उनके हिसाब से उनको जो है मिलना चाहिए। इंशाल्लाह वो मिलेंगे।